Ignited Minds Tutorials recently uploaded a video focusing on the revision of the structure of atom topic for Class 11 CBSE and other boards, as well as IIT and NEET exams. This knowledge explanation article aims to provide a brief overview of the content covered in the video. The video starts with an introduction to the basic atomic structure, highlighting the role of protons, neutrons, and electrons. It explains the significance of the nucleus and the electron cloud in determining the properties of an atom. Moving forward, the video delves into the atomic models proposed by scientists like J.J. Thomson, Rutherford, and Bohr. It discusses the drawbacks of each model and how subsequent experiments led to a better understanding of atomic structure. The article proceeds to discuss the electronic configuration of atoms, emphasizing the rules to determine the arrangement of electrons in different energy levels and subshells. It also touches upon the importance of valence electrons and their role in chemical bonding. Furthermore, the video highlights the concept of isotopes and their relevance in understanding atomic mass. It explains the calculations involved in determining average atomic mass using isotopic abundances. To conclude, the revision video provides a comprehensive overview of the structure of atom topic, catering to the needs of students studying in Class 11 CBSE and other boards, as well as those preparing for IIT and NEET exams. It serves as a valuable resource for enhancing understanding and preparing for examinations. Okay, people, we are going to do a revision on structure of atom. और इस structure of atom में we have done this chapter, but आपके IIT और NEET और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो मैं एकदम धीरे तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए. रिवीजन है, इसमें अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे और नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़ा सा एंड में, ठीक है. मे बी वी विल बी कवरिंग दिस विद इन 2 or 3 आवर्स, बट ओके, सो दैट्स द प्लान. लेट्स स्टार्ट विद दिस. Okay, so what is atom basically, people? The word atom has been derived from the Greek word atoms, which means indivisible. ठीक है, लेकिन आज की तारीख में atoms divisible हैं. ठीक है, एक टाइम था जब हम बोलते थे कि भाई atom मतलब indivisible हो गया, but atoms are divisible today. So atoms are divisible. ठीक है, और किस किस चीज़ में divisible हैं बताइए फटाफट. भाई साहब, आपके हो गया प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में divisible हैं. और भी बहुत सारे डिविजन्स हैं जो फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, ओके. एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एटम जो नाम था किसने दिया था भाई साहब? डाल्टन ने. और डाल्टन ने जो एटम की खोज की थी वो पूरी थियोरेटिकल खोज थी. ठीक है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, ये उनकी थियोरी थी. और आज की तारीख में भी ऑलमोस्ट 20% ऑफ व्हाट ही प्रपोज एज अ थियोरी विद रिगार्ड्स टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज स्टिल करेक्ट. ठीक है, 80% गलत हो गया लेकिन 20% इज स्टिल करेक्ट. आनंद, अच्छा ठीक है. सो 20% इज स्टिल करेक्ट. सो दैट इज हाउ इट इज. स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली आपका जो है, ठीक है, तो क्योंकि ये थियोरी डाल्टन ने प्रपोज की थी इसीलिए हम इसको एटम बोलते हैं. लेकिन एटम बेसिकली इंडिविजिबल नहीं है. ठीक है, डाल्टन ने भी यही बोला था कि एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल. लेकिन आज की तारीख में वी हैव सीन दैट एटम्स आर डिविजिबल. ठीक है, ओके. Positron, तो some other particles like positron, neutrino, ठीक है, and pi meson, mu meson, k meson, etc. are also present, which are very short lived. इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, फिलहाल इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं. आपका जीवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही सीमित है. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन का देखो मास क्या होगा? 9.1 into 10⁻⁻30. चार्ज -1.6 into 10⁻⁻19. इसको डिस्कवर किसने किया था? थॉमसन. व्हाई इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी हैव सीन दैट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली फॉर नीट, ठीक है, उसमें एक ना एक सवाल ऐसा आता है, ये किसने डिस्कवर किया था, वो किसने डिस्कवर किया था. ठीक है, ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, बट स्टिल इट कम्स, सो वी नीड टू नो देयर नेम्स. ठीक है, प्रोटॉन 1.6 into 10⁻27. दिस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. न्यूट्रॉन
1.67 into 10 raised to minus 27. This was discovered by Chadwick. ठीक है. So these are the people who were the discoverers of these. यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ, यहाँ कहीं बैठ सकते हैं. ठीक है. पॉइस्टरॉन, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन. इसका जो चार्ज है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो लगभग सेम है. ठीक है. पाई मीसेन है भाई साहब आपका. ठीक है. युकावा ने डिस्कवर किया था इसको. तो आपका भाई साहब इन तीनों से ही मतलब है. दीज आर द ओनली थ्री दैट यू हैव टू बेसिकली कंसिडर. ओके, कैसे हुआ था भाई साहब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो ये आपका भाई साहब एक कैथोड रे ट्यूब है विच इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब, और इसमें बहुत हाई वोल्टेज को अप्लाई किया गया है. अंदर एक गैस भरा गया है, जनरली हाइड्रोजन से हम चालू करते हैं. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली एक गैस भरा गया है और बहुत हाई वोल्टेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25,000 वोल्टेज. ठीक है, मोर देन दैट. ठीक है. सो विलियम क्रुक स्टडीड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर. ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. तो ये आपका जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब है विच इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब. ठीक है. और जब यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड रेज. ठीक है. दिस बेसिकली नोन एज कैथोड रेज. About 60 centimeter length. It is sealed at both ends and fitted with two metal electrodes. तो यहाँ पे दो metal electrodes हैं. The electrical discharge, so the gases could not be observed only at very low pressures. तो आपका जो इलेक्ट्रिकल, देखो गैसेस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज happens at a very low pressure, बहुत लो प्रेशर में और बहुत हाई टेम्परेचर में होता है. It happens at a very low pressure and at हाई टेम्परेचर. तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में ये डिस्चार्ज हमको देखने को मिलता है. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है. तो दिस वाज द डिस्चार्ज ट्यूब. यहाँ पे क्या था? एक वैक्यूम पंप है. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को पहले भरा गया, हाई प्रेशर में भरा गया, कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिला, तो हमने इसको वोल्टेज को बढ़ाया और इसके प्रेशर को कम किया. धीरे धीरे एक ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठता है with reduced pressure, with reduced pressure and high voltage, that we are able to see that there are charged particles which are emitted. ठीक है. और ये चार्ज पार्टिकल्स आपके क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम है उसी को अपन क्या बोलेंगे? कैथोड रेज. ठीक है. द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कैथोड रेज. दैट्स हाउ बाय J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड. ठीक है. क्लियर है? ओके. J.J. Thomson took a discharge tube and applied a voltage of 10,000 volt. तो भाई साहब वोल्टेज देखिए कितने का है? 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. अक्रॉस इट एट अ प्रेशर ऑफ 10 to 2 मिलीमीटर ऑफ Hg. बहुत ज्यादा प्रेशर को रिड्यूस किया इन्होंने. He found some glowing behind anode. It means some invisible rays produced at cathode strike behind anode and produce fluorescence. He named them as cathode rays. तो यहाँ पे भाई साहब एनोड के पीछे यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है. ठीक है. यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ पे चमकते हुई चीजें दिख रही हैं. ठीक है. देयर इज अ शाइन दैट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है, मतलब फ्लोरेसेंट कलर है, और जैसे तारे चमकते हैं स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं. ठीक. यहाँ पे भी भाई साहब आपके क्या प्रोड्यूस हो गए? स्किंटिलेशंस. दीज स्किंटिलेशंस वर प्रोड्यूस्ड. व्हाई वर दीज स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस्ड? बिकॉज दीज चार्ज पार्टिकल्स वर कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग ऑन दिस स्पेस. ठीक है. और जिसकी वजह से एक चमक प्रोड्यूस हुआ, स्किंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है. ओके. सो दिस वाज डन बाय. ओके. कैथोड रेज की भाई साहब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? किन से बने हुए कैथोड रेज? कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हैव मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अभी मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो मूव कर रहे हो. ठीक है. और इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ठीक है. हमने अगर यहाँ पे, वो आपने बचपन में वो फैन देखा है क्या? एक टिन्नू सा फैन होता है, उसको रस्सी जैसे खींचो तो घूमता रहता है. ठीक है. मेले वगैरह में मिलता है वो. ठीक है. बचपन में. क्या इसमें हंसने की बात क्या है? तूने नहीं देखा है तो क्या हुआ? दुनिया ने देखा है. सो कीप योर रिस्पॉन्सेस टू योरसेल्फ. तो यहाँ पे जो एक छोटा सा फैन होता है. ठीक है. इट्स हाई टाइम दैट यू कम आउट ऑफ योर जोकिंग मोड, बिकॉज सर पे तलवार लटक रही है. और मैं आपको किस तरह से आपके सीरियसनेस का अंदाजा दिलाऊं मुझे नहीं मालूम, बट जब भी मैं यहाँ पे कोई टेस्ट देता हूँ, या तो आपका टाइम पास में टाइम जाता है, क्योंकि 50% भी क्रॉस नहीं हो रहा है. सो विच मीन्स एफर्ट्स आर जीरो टिल नाउ एंड फॉर एवरी वन ऑफ यू. हर एक की यही कहानी है यहाँ पे.
टेस्ट देता हूँ, लोग आते नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। टेस्ट देता हूँ, यहाँ पे आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आपको साइंस मजाक लग रहा है? सही मायने में बोलूँ ना तो मतलब मैं अब्यूजिव नहीं होना चाहता हूँ यहाँ पे। The electrical discharge through these gases could be observed at very low pressures and at a very high voltage। ठीक है, तो बहुत हाई वोल्टेज में इसको हम देख पाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, सो इस तरीके का एक बहुत हल्का सा अगर हमने फैन यहाँ पे दिया, ठीक है, जो एकदम किड्स लोग खेलते हैं, ये एक बहुत ही थिन फॉइल से बना हुआ अगर हमने फैन यहाँ पे इंस्टॉल किया तो हमको दिखेगा कि ये फैन घूम रहा है। ठीक है, ये फैन इसलिए घूम रहा है क्योंकि कैथोड रेज हैव मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कैथोड रेज हैव मैकेनिकल एनर्जी। ये फैन भाई साहब घूमता हुआ नजर आएगा आपको क्योंकि कैथोड रेज के मैकेनिक स्ट्राइकिंग से ये फैन घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है? So cathode rays have mechanical energy and they travel in a straight line. These rays are deflected towards positive plate of electric field. अगर अभी हमने भाई साहब इसको कैसे प्रूव करना है, अभी कैथोड रेज तो यहाँ पे निकल रहे हैं, अगर हमने भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया, लेट्स से ऐसा हमने एक प्लस डाल दिया और एक माइनस, आपको दिखेगा कि ये अभी ऐसे जा रहा है, दिस इज लाइक गोइंग लाइक दिस। पहले तो स्ट्रेट जा रहा था लेकिन अभी ये इस तरफ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इनका पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना। ठीक है, सो द रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस दीज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भाई साहब किन से बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। कलर ऑब्जॉर्ब इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ गैस, तो जो कलर आपको दिखता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। मोलिकिन डिटरमिन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक मिलिकिन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने, हम देखेंगे ये मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, इतने कूलम का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये उन्होंने प्रूव किया। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन। ठीक है, ओके, चार्ज इज टू मास रेशियो, चार्ज इज टू मास रेशियो के लिए दो एक्सपेरिमेंट हुए थे। ठीक है, ये आपका कैथोड रे ट्यूब है, आपका एनोड रे ट्यूब है। ठीक है, जे थॉमसन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड चार्ज इज टू मास रेशियो एंड दिस इज कॉल्ड एज E/M। ठीक है, E/M रेशियो जिसको अपन बोलते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर दिस ही सब्जेक्टेड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये भाई साहब आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को जाने दिया इन्होंने और यहाँ पे दो प्लेट्स रख दिए, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमको देखता है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर दिस ही सब्जेक्टेड द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एज कैथोड रेज टू इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। These were acting perpendicular to one another as to the path followed by electrons। क्या है भाई, कुछ भी कभी भी आने का। हाँ, what time is it? 20 मिनट्स लेने हैं आप, बाहर ही रहो, यहां की मेहरबानी क्यों कर रहे हो? According to Thomson, the amount of deviation of particles from their path is presence of electric and magnetic field depends upon the magnitude of negative charge on the particle। कितना भाई साहब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, how much is the value of negative charge, how much is the negative charge, mass of the particle कितना मास है और आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, कितना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। सो ऑल दिस, तो यहाँ पे हमने दो चीजें अप्लाई की हुई हैं। देखो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब जाके आपको ऐसा दिख रहा है। अगर हमने एक भी फील्ड को ऑफ कर दिया तो भाई साहब कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन एक साइड में हो जाएगा, इट विल बी टुवर्ड्स वन एंड। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में रखा तो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेट हिट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली मोस्टली हिटिंग स्ट्रेट। ठीक है, एज दे वुड हैव डन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, डेविएशन फ्रॉम द पाथ टेक्स प्लेस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो ये वाला डेविएशन होता है देखो, और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये वाला डेविएशन होता है। ठीक है, इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कैथोड रेज स्ट्राइक एट ए, सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो कैथोड रेज विल स्ट्राइक एट ए, और सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो दीज कैथोड रेज आर गोइंग टू स्ट्राइक एट सी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो दे विल स्ट्राइक एट बी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू नलिफाई देयर इफेक्ट्स। ठीक है, when electric field is applied, deviation from that path takes place. If only electric field is applied, cathode ray strikes at A. If only magnetic field is applied, cathode ray strike at C. In absence of any field, cathode ray strikes at B. किसी भी फील्ड के एब्सेंस में ये सब B में स्ट्राइक करेगा, और दोनों भी हों अगर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड,
और एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आपका सीधा बी पे स्ट्राइक करेगा ये, ठीक है। सो दीज वे द ऑब्जर्वेशंस दैट वेर मेड बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो ये वाला जो सिस्टम था, इससे हमने E/m रेशियो निकाला, ठीक है, चार्ज इज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेस, और हम बोल सकते हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, E/m का रेशियो निकाला। ओके, by carrying out accurate measurements on the amount of deflections observed by electrons on the electric field strength of magnetic field, Thomson was able to determine the value of E/m। तो E/m का वैल्यू कितना हो गया, 1/75 into 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है, where me is basically mass of electron and E is the magnitude of charge। इससे थॉमसन ने निकाला। अगर आपको पूछा जाए कि भाई साहब E/m रेशियो किसने निकाला था, दो एक्सपेरिमेंट से E/m रेशियो कैलकुलेट हुआ था, एक ये थॉमसन का और दूसरा हुआ था मिलिकन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अभी एनोड रेस पे आते हैं। एनोड रेस भाई साहब किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन, ठीक है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, हालांकि आपके कंपटीशन में ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, कम से कम नीट के पेपर्स में मैंने देखा है यहाँ पे कि आपको साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्डस्टीन इन 1886 मॉडिफाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। On reducing the pressure, he observed a new type of luminous rays passing through the holes or perforations of the cathode, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए भाई साहब, पॉजिटिव रेस। क्या एनोड रेस क्या हो गए आपके, पॉजिटिव रेस। ओके, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी आप पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ये पॉजिटिव रेस कैसे प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव रेस ऐसे प्रोड्यूस हुए हैं कि भाई साहब जो गैस पार्टिकल्स हैं, इनमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने भगाया है, जिसकी वजह से ये भाई साहब पॉजिटिव बने हैं, ठीक है। सारा कार्यक्रम हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने से, इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रेस या पॉजिटिव पार्टिकल्स अपने आप क्रिएट नहीं होंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम अगर किसी एटॉमिक स्पीशीज से उसके इलेक्ट्रॉन्स को भगाते हैं तब जाके पॉजिटिव क्रिएट होगा। पॉजिटिव particles will not be created on their own. We can create electron particles on their own, but positive particles cannot be created on their own. They are a result of repulsion, or they are a result of expulsion of electrons from atoms, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज भाई साहब these are also deflected, तो आपका पॉजिटिव रेज है किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस पे क्यों डिपेंड करेगा भाई साहब, क्योंकि आपका कौन सा गैस है और उस गैस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होंगे। क्लियर हम पीपल, ठीक है। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड हैव मैकेनिकल एनर्जी। इनका भी भाई साहब मैकेनिकल एनर्जी है। वो छोटा सा पंखा अगर आप लगा देंगे तो वो घूमेगा, ठीक है, बहुत जोर से ना सही, लेकिन वो घूमेगा। इट विल बी परफॉर्मिंग रेवोल्यूशन। आर वी क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब देखो, आपको किसी ने स्ट्राइक किया तो आप आगे गए ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो हम तो ना ही कैथोड रेस को देख पा रहे हैं और ना ही एनोड रेस को देख पा रहे हैं। ऑल दैट वी आर एबल टू सी इज कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब के एंड में फ्लोरेसेंस है और वहां पे ऐसे चमकते हुए स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये कहां से आ रहे हैं भाई साहब और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड रखा, फिर दोनों को भी रखा, ठीक है। और फिर क्या किया, फिर हमने भाई साहब आपके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद वी मेजर्ड वेदर दे हैव मैकेनिकल एनर्जी एज वेल बाय प्लेसिंग अ फैन। वो फैन घूमता है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब ये स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड, ठीक है। ओके, ऑल राइट। ये है आपका भाई साहब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और काफी दिमाग लगा के इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है, ठीक है। ओके, है काफी सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पे एक चेंबर है और इस चेंबर में एटमाइजर होता है। आपने देखा रहेगा जो ये क्या कहते हैं गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं, उनके पास ही ऐसा इक्विपमेंट होता है, ठीक है। अभी तो खैर बहुत सारे और तरीके हो गए हैं गाड़ियों में तेल डालने के लिए, लेकिन गाड़ियों के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे आप हाथ से वहां पे तेल नहीं डलवा सकते हैं। सो यू हैव टू बेसिकली यूज दिस एटमाइजर। ये एटमाइजर बेसिकली करता क्या है, और मुझे कोई यहाँ पे बताए और समझाए ये कैसे हो रहा होगा। ये भाई साहब एक भोंपू है, ठीक है, रबड़ है जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे ये आपका ये भाई साहब तेल है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही इस भोंपू को प्रेस करेंगे इसमें से तेल निकलेगा। एनी रीजन वाई? हाँ,
क्या किया तुमने, एयर प्रेशर कैसे? नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ बोलने दीजिए। एयर को अंदर लिया, एयर को बाहर निकाला था, तो जो एयर का जगह था उसकी जगह ऑयल आ गया। ओके, चलिए, आपने आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स नहीं पढ़ा है, अगले साल पढ़ेंगे। यस, नाउ टेल मी। तो जब प्रेस करते तो एयर बाहर आ जाता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो एक बर्नौलीज प्रिंसिपल होती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से आप जब यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, इसको जब प्रेस कर रहे हैं तो एयर क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना आपने जवाब दिया वो काफ़ी है। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है भाई साहब, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस 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 प्रेशर। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होता है। डोंट ब्रेक योर हेड्स ऑन दिस, बिकॉज आपने नहीं पढ़ा है, इसका अलग चैप्टर है। अभी जब हमने यहाँ पे प्रेस किया, जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे वेलोसिटी से एयर बाहर गया, वेलोसिटी बढ़ गई भाई साहब। अगर वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर कम हो गया, और जैसे ही प्रेशर कम हो गया ये अंदर का ऑयल भाई साहब बाहर आ गया। तो ये पुचुक पुचुक भाई साहब जहां पे भी आपको तेल डालना है गाड़ी के जिस पार्ट पे भी वो जाता है, इसको हम एटोमाइजर बोलते हैं। अभी यहां से इसका मतलब क्या है कि हम बहुत धीरे से इस तेल को यहाँ पे छोड़ेंगे, मतलब ऐसे ड्रॉप्स की तरह निकलेगा ये। ठीक है, इट विल बी बेसिकली इजेक्टेड एज ड्रॉप्स। ठीक है, हमने इसको सिस्टम को ऐसे सेट कर दिया है कि बहुत जोर से ऐसे फवारे की तरह तेल नहीं निकलेगा, एकदम ड्रॉप्स की तरह तेल निकलेगा। ठीक है, ओके। अभी ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है भाई साहब, ये चेंबर है आपका, ये टेलीस्कोप है जिसमें से आप देखेंगे इस चीज को। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। अभी आपने यहाँ पे चार्ज लगा दिया है। ठीक है, देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसको आपने भाई साहब वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्मॉल सा होल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये चेंबर के अंदर भाई साहब दो चेंबर्स आपने बनाए हैं और इसमें चार्ज डाला हुआ है, एक स्मॉल सा होल भी डाल दिया है। मतलब कैसा, ये जो तेल आपने छिड़का है ये तेल यहां से गिरेगा, है ना, ये तेल यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा, बहुत छोटा सा एक होल है। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव कनेक्टेड। ये आपका ओके, ये वाला है आपका नेगेटिव और ये वाला है आपका पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। अभी जैसे तेल को तुमने यहाँ पे छोड़ा और जैसे ये होल से जाएगा ये क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है? देखो तेल न्यूट्रल है, तेल का ड्रॉप न्यूट्रल है, वो भाई साहब इस सरफेस पे गिरा और इस होल से नीचे जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसमें चार्ज तो आएगा भाई साहब, क्योंकि वो चार्ज से होते हुए जा रहा है। ये प्लेट तो चार्ज है ना आपका, तो जब ये चार्ज से होते हुए जाएगा तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो? सम फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स आर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल into the upper plate of an electric condenser. These oil droplets were produced by the atomizer. The air in the chamber was subjected to ionization. अभी जो एयर है देखो इसका आयनाइजेशन कर दिया। अभी इस चेंबर के अंदर आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, तो एयर का भी भाई साहब आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ एयर अटैच देमसेल्व्स टू ऑयल ड्रॉपलेट्स। जब आप कोई बहुत बड़ा, जैसे समझ लो ये एक प्लग पॉइंट है ना, जब भी आप कोई ऐसे हाई वोल्टेज का प्लग पॉइंट घर पे या कहीं पे भी कनेक्ट करते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वो उसको आप एकदम चिपका कर करो। यू रीजन अंडरस्टैंड द रीज़न वाई। गीज़र हो गया, एसी हो गया, जो हाई आउटपुट वाले हैं उनको एकदम चिपका के करना चाहिए। एनी रीज़न वाई? पावर लीक ना हो। ओके, अगर हुए तो क्या होगा? हाँ, अरे शाबाश, ठीक है, यस, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज है। ठीक है, एयर आयनाइज हो जाएगा। देखो समझ लो ये कोई प्लग पॉइंट है, ठीक है, इसके भाई साहब ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे दो वाले हो गए। ठीक है, अभी आपने भाई साहब स्विच बोर्ड में इसको डाला तो हुआ है, लेकिन ठीक से नहीं डाला है, तो आपका गैजेट तो चल रहा है, जो भी है, गीजर है, एसी है, जो भी है वो चल रहा है। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। गीजर है भाई साहब, एसी है, तो ऑब्वियसली बहुत हाई इलेक्ट्रिकल आउटपुट लगता है, तो बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो टिन्नू सा एयर का स्पेस है ये आयनाइज हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने में एयर को हम आयनाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने बड़े पैमाने में एयर को आयनाइज करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो थोड़ा सा क्राउड है यहाँ पे, ये इसको आयनाइज कर सकता है, और जब आयनाइज करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, फट से जलेगा वो। ठीक है, वो जल जाएगा। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हैपनिंग इफ यू आर नॉट प्लगिंग इन द स्विच डाइट इनटू द डैशबोर्ड।
समझ में आ रहा है? ये एयर के आयनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे भी यही हो गया है भाई साहब, एयर का आयनाइजेशन हो गया है। अपनी आप में हंसे जा रही हो, अच्छा यहाँ पे भाई साहब एयर का आयनाइजेशन हो गया। ये जो आपका ऑयल पार्टिकल है ये भाई साहब नीचे आया, ठीक है, ओके। द ऑयल ड्रॉपलेट्स अक्वायर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों हो जाएगा भाई साहब इसमें? बोल बोल बोल। इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, इलेक्ट्रॉन कहां से मिला? वो चार्ज से। ये तो प्लस है, ये प्लस है, तो इसमें से जो ऑयल गिर रहा है वो नेगेटिव क्यों हो जाएगा? ऊपर वाला प्लेट प्लस है, देखो नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, ऊपर वाला भाई साहब आपका प्लस है। ये चार्ज प्लेट है ना, देखो प्लस, और ये नेगेटिव है, तो इसमें से जो ऑयल गिर रहा है वो नेगेटिव क्यों होगा? बोला हो, बोला जल्दी से बोला। व्हाई विल दैट बी नेगेटिव? ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है भाई साहब, ठीक है, जिस एनवायरमेंट से ये गुजर रहा है वो प्लस का एनवायरमेंट है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये नेगेटिव क्यों हो जाएगा? अभी जब ये गुजरा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। व्हाई विल दिस हैपन? आप बोला जल्दी, बोला जल्दी। व्हाई विल दिस हैपन? अरे बोला हो, जल्दी से बोला। ये तो न्यूट्रल था ना भाई साहब, इसको एंटर करने के पहले ये न्यूट्रल था, जैसे ही इसके अंदर गया ये पॉजिटिव से टच होने में ही ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया भाई साहब, बोलो? तुमको अगर रेगिस्तान में रख दिया जाए अभी, तो तुम ज्यादा पानी पियोगे कि यहां पे ज्यादा पानी पियोगे? समझो तुम रेगिस्तान में बैठे हो भाई साहब, ऐसी प्यास लग जाएगी, है ना? अभी तुम शायद पानी नहीं पी रहे हो, अचानक भयानक में तुमको रेगिस्तान में रख दिया जाए, तुम्हारा बॉडी मतलब पानी मांगेगा ही। ज्यादा पानी पियोगे कि कम? ज्यादा, है ना? ऐसे ही एनवायरनमेंट में। तो भाई साहब जब ये न्यूट्रल है और प्लस से जा रहा है, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं, जिसके वजह से भाई साहब ये नेगेटिव हो गया है। दिस हैज बिकम नेगेटिव। क्लियर है? तो इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है। दिस हैज बेसिकली एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज बाय पासिंग थ्रू पॉजिटिव। ठीक है, ओके। सो अभी जैसे ये नेगेटिव हो गया, अभी समझो, अभी भाई साहब ये जो ये ड्रॉप है भाई साहब, ये ड्रॉप आया, ठीक है, अभी इसमें नेगेटिव, ऊपर क्या है बोलो? पॉजिटिव, और नीचे क्या है बोलो? नेगेटिव। अभी इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, थोड़ा सा फिजिक्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे भाई साहब इसका खुद का वेट लग रहा हो mg, है कि नहीं? और क्या फोर्सेस लग रहे हैं भाई साहब? ये नेगेटिव इसको रिपल्स करेगा, नीचे बताओ, ऊपर जा, ठीक है, तो इसको रिपल्स करेगा, और ये भी इसको ट्रैक करेगा। तो ऊपर की तरफ कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दो टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं, ये नेगेटिव वाला और ऊपर का पॉजिटिव वाला। ऊपर का पॉजिटिव इसको खींच रहा है और नीचे का नेगेटिव इसको पुश कर रहा है। तो नीचे का जो फोर्स है वो क्या है? mg है, और ऊपर का जो फोर्स है वो क्या है भाई साहब? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये दोनों आप इस चार्ज प्लेट को बैलेंस करके एक ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाते हैं कि ये ऑयल ड्रॉप वहीं पे अटक जाता है एयर में, वो ना नीचे गिरेगा ना ऊपर गिरेगा। ठीक है, दिस इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। You adjust the voltage in such a way that after some time, if you view through the telescope, you will find that the oil drop is stuck midway between the two plates in the air, suspended. ठीक है, ना वो नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ही कर सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा भाई साहब, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपने किसी स्केल को भाई साहब रब किया और जो छोटे छोटे पेपर्स है वो ऊपर चले जाते हैं, अपना उनका एक वेट है, लेकिन फिर भी वो ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहां पे इस कंडीशन में जो ऑयल का मास होगा mg, दिस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपवर्ड्स। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट अपवर्ड्स। क्लियर है? ओके ओके, तो ये सारे कैलकुलेशंस करके भी E/m का रेशियो फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, सो व्हाइल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद द मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स कैन बी एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड और मेड स्टेशनरी। ठीक है, तो एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, रिटार्ड भी कर सकते हैं और स्टेशनरी भी बना सकते हैं। Millikan observed that the smallest charge found was how much? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and the magnitude of electric charge Q on the droplets is always an integral multiple. तो आपका जो चार्ज है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चार्ज हमेशा भाई साहब आपका क्वांटाइज होता है। क्लियर 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 पीपल?
क्वांटाइज मतलब क्या होता है? ग्यारह जन बैठे हैं भाई साहब, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 11 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 11.5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? या 10.5 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अभी अकबर को नींद आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि 10.5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना? ये गलत होगा, तो इट इज क्वांटाइज्ड। क्लियर है? क्वांटाइज मतलब एक न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होगा, मतलब आपका जब भी चार्ज होगा दिस विल बी इधर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और 6.4 इंटू 10⁻, ऐसा होगा भाई। सो ऑल ऑफ देम विल बी बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 1.6। आर वी क्लियर? ये क्वांटाइज्ड ही होगा। ओके ओके ओके। थॉमसन का मॉडल भाई साहब, डाल्टन ने बोला है भाई साहब सब चुप बैठो, मैं बोल रहा हूं सब कुछ एटम से बना हुआ है, तो 100 साल तक लोग चुप बैठे, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास ना उस टाइम पे स्टेथोस्कोप था और ना भाई साहब आपके माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब कुछ था नहीं। तो डाल्टन भाई साहब ने बोल दिया ये एटम है, देखो ये एटम की प्रॉपर्टी होती है, जो बोल रहा हूँ मान लो चुपचाप, और मैं तुमको प्रूव करके भी बता रहा हूँ ऐसा हो रहा है, तो ठीक है भाई साहब, खत्म होगी बात, ठीक है। 100 साल तक लोगों को मालूम था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आए भाई साहब थॉमसन ने बोला कि यार चार्जेस तो हमें दिख रहे हैं, मतलब प्लस चार्ज दिख रहा है, माइनस चार्ज दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? अगर डाल्टन भाई साहब बोल के गए हैं कि एटम ही है तो जरूर कुछ और घपला है। इन्होंने भी एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, एटम का, और इन्होंने बोला भाई साहब प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। तो आप एक वाटरमेलन को बीच से काटते हैं, आपको क्या दिखता है भाई साहब? देयर इज अ रेडिश पार्ट एंड यू सी सीड्स, ठीक है, ब्लैक कलर्ड सीड्स आउट हियर। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलेंगे। थॉमसन ने भाई साहब बोला कि ये सारा जो चक्कर है वो ये है कि ये जो रेड पार्ट है ये आपका प्रोटॉन का पार्ट है, और इसमें जो ब्लैक सीड्स हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स हाउ एन एटम एग्जिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं। इसमें गलत क्या कर दिया उन्होंने? व्हाट इज रॉन्ग? बोल बोल। नहीं चलो, प्रोटॉन्स तो नाम बाद में आया है, प्रोटॉन्स नाम बाद में, वो बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने नाम नहीं दिया प्रोटॉन्स, चलो छोड़ो उसको, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के समुंदर में भाई साहब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? आज के दौर में आप बताइए ये क्या गलत है? तभी तो लोग बता नहीं पाए, लेकिन अभी तो आप बता ही सकते हैं ना। बताइए भाई साहब क्या रॉन्ग है इसमें? व्हाट कुड बी रॉन्ग हियर? हाँ, इंडिविजिबल, नहीं, क्या रॉन्ग हो सकता है यहाँ पे? ऐसे थोड़ी ना हो सकता, क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वो तो तुम अब बाद में एक्सपेरिमेंट करके बता रही हो ना। इस थियरी में क्या रॉन्ग है भाई साहब? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर साथ में आ जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि भाई साहब यहां पे एक समुंदर टाइप का बना हुआ है जो पॉजिटिव है और उसमें ऐसे नेगेटिव चार्जेस आर फ्लोटिंग, देन नन ऑफ द चार्जेस वुड बी एग्जिस्टिंग, सब न्यूट्रल हो जाएगा, चार्जेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग। इनका प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, व्हाटएवर यू वांट टू, ही अज्यूम्ड एटम टू बी अ स्फेरिकल बॉडी। तो एटम एक स्फेरिकल बॉडी से बना है, ये डाल्टन ने भी बोला था, थॉमसन ने भी बोला, ठीक है। क्या क्या था भाई साहब? द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकल गया? अभी तक हम मान रहे थे कि एटम्स के अंदर कोई चार्ज या सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है, अभी आपको मिल गया कि एटम के अंदर चार्ज या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। तो लोग बोल रहे थे अभी तक कि एटम तो न्यूट्रल होता है, किसी एटम को छूने से हमको शॉक थोड़ी लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट है, इसीलिए न्यूट्रल है। लेकिन भाई साहब ये एक साथ ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए भाई साहब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 में, ठीक है। और रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये प्रॉपर्ली स्टैब्लिश हुआ कि कैसे ढांचा है, ठीक है, हाउ आर दीज थिंग्स एडजस्टेड। तो रदरफोर्ड इन 1911 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही डायरेक्टेड अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होती है, ठीक है। यहां से आज जो रेडिएशन निकल रहा है इसको इसने जाने दिया एक गोल्ड फॉइल पे और इधर से ऑब्जर्वेशंस किया, ठीक है। सो एक फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्जर्वेशंस किया तो उन्होंने देखा ज्यादा करके जो अल्फा पार्टिकल्स थे, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स बाय द वे? आई देखो देखो देखो, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बोला जल्दी से बोला। अल्फा पार्टिकल्स मतलब आपका जो हीलियम एटम होता है, देखो हीलियम एटम,
ये 2/4, मतलब हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इनमें से अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दिया, ठीक है, तो क्या बचता है भाई साहब, आपका हीलियम 2+ हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली He2+, ये हो जाएगा हीलियम एंड दिस इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल को हमने जाने दिया गोल्ड फॉइल से। अभी यहां पे क्या है समझ लो, एक लड़का है उसका नाम यूसुफ है, अपना वाला नहीं कोई दूसरा, ठीक है। तो इसको ना भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक है, और गर्लफ्रेंड के बाप ने ऐसा फेंसिंग लगा के रखा है, ठीक है, ऐसा फेंसिंग लगा के रखा है, तो ये तो बड़े आराम से निकल जाए, है कि नहीं, स्ट्रेट निकल जाएगा भाई साहब। क्लियर है। फेंसिंग अगर बहुत ज़्यादा ऐसे घने हो तो निकल पाएगा नहीं भाई साहब, ठीक है, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट निकल रहा है इसका मतलब क्या है, फेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जिसमें से वो आराम से निकल जा रहा है ना। तो ये जो आपके एटम के जो पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, गोल्ड फॉइल के एटम्स होंगे, लेकिन उनमें से भाई साहब ये स्ट्रेट जा रहे हैं ज़्यादा करके। ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू गो स्ट्रेट, ठीक है, विच मीन्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। एटम के अंदर काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अगर यूसुफ भाई यहाँ से निकल सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारा फेंसिंग में डिफरेंस है। अगर फेंसिंग में डिफरेंस नहीं होता तो नहीं निकल पाते थे, तो यहाँ पे फेंसिंग में काफ़ी सारा डिफरेंस है इसलिए आराम से निकल पा रहे हैं। तो इसका मतलब एटम के स्ट्रक्चर में भी ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जो स्ट्रेट जा रहे हैं, इट मीन्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि भाई साहब ये एटम है और ये छोटा सा टिन्नू सा हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये बाकी सब एम्प्टी स्पेस है जिसमें से आपके अल्फा पार्टिकल्स आराम से जा सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा कंपैरिजन किया गया है कि भाई साहब एक बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड है और लगभग बीचों बीच अगर उसका आपने एक राई का दाना रखा तो जितना एक राई का दाना और एक फुटबॉल फील्ड का कंपैरेटिव साइज होता है, लगभग उतना ही कंपैरेटिव साइज एक न्यूक्लियस और एटम का होता है, ठीक है। दैट इज हाउ द साइज इज कंपेरेबल। ओके, द थिन गोल्ड फॉइल had a circular fluorescent zinc sulfide screen. Whenever a particle struck on the screen, a tiny flash of light was produced, जिसको अपन scintillations भी बोलते हैं। तो हमको मैक्सिमम यहाँ पे मिला, थोड़ा बहुत इधर मिला और बहुत ही कम इधर मिला, ठीक है। Some of them were reflected back. So there were 3 observations that were there, ठीक है। So most of the alpha particles passed without any deviation. Few particles deviated with small angle. थोड़े बहुत जो है तो small angle से deviate हुए। Rare particles तो बहुत, उससे भी बहुत कम जो है तो पीछे की तरफ आए, ठीक है। Okay. On the basis of these observations, he proposed atom is a spherical shape having the order of 10 raised to -10 मीटर, ठीक है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम जिसको अपन बोलते हैं, एक स्फेरिकल शेप होता है जिसका इतना ही साइज होता है। और क्या है भाई साहब, होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस का भाई साहब कितना हो गया 10 raised to -5, 15। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का 2 टाइप का रेवोल्यूशन होता है। मतलब कैसा है, 2 टाइप नहीं, जैसे एक प्लैनेट है वो सन के आजू बाजू कैसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ठीक है, रोटेशन भी हो रहा है, रेवोल्यूशन भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, तो रोटेशन भी हो रहा है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है। क्लियरम पीपलम, क्लियरम। ओके, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स क्लासिक थियोरी। तो अभी ये मॉडल का एक अच्छा ये हुआ कि इसके पहले थॉमसन के मॉडल में सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दिखाया गया जो गलत था। अभी क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर भाई साहब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एकदम सेफली लोकेटेड है और ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब घूमी कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड द एटम। तो इसमें भाई साहब सब न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये वाला भी है और एक दूसरे से टकरा कर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, ये वाला भी थियरी आपका बन जाता है। लेकिन एक थियरी जो रदरफोर्ड की गलत हो गई वो ये हो गई कि मैक्सवेल ने बोला कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप मूव कराते हैं, एनी चार्ज पार्टिकल वेदर इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, ठीक है, इट विल रेडिएट एनर्जी। तो अगर एनर्जी रेडिएट होती है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जैसे घूम ही नहीं सकते, वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लॉस करते हुए किसमें डाई आउट करेंगे, न्यूक्लियस में जाकर गिरेंगे, ठीक है। तो कैसे ऐसे हो रहा होगा कि भाई साहब ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इसके बाद हमारे भाई साहब आए बोर, ठीक है, नील्स बोर।
इन्होंने बोला अरे रुको रुको मैं आ गया, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ क्या चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो ये एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल है, मतलब जब तक आपका इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा ना ही वो, मतलब वो एनर्जी उसकी जाएगी नहीं, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट टिल द टाइम इट इज देयर इन इट्स स्टेशनरी। तो इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। तो बोर भाई साहब ने मैक्सवेल को थियरी को खारिज किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई साहब? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। और मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई डोंट थिंक इट नीड्स मच ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर। ओके 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 ओके। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। जैसे आपका भाई साहब क्लोरीन के 35 17 Cl एंड 37 17 Cl, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर आइसोटोप्स। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 11H 21H एंड 31H। हाइड्रोजन प्रोटियम से प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, क्लियर है। दीज आर आइसोटोप्स। ओके, आइसोबार्स क्या हो जाएंगे? एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो आपका देखो जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 आइसोटोप और नाइट्रोजन, ठीक है, इनके भाई साहब दोनों के मास नंबर सेम है, हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दिस वाज प्रूव्ड बाय जेम्स मैक्सवेल। तो इनके हिसाब से भाई साहब दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं, और जब ये साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं तो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। एक भाई साहब ऐसे जा रहा है और एक साइमल्टेनियसली ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा भाई साहब दोनों एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। द मेन पॉइंट्स of this theory are as follows. The energy is emitted from any source continuously. जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। दिखाऊं सवाल का सिलसिला, देख लीजिए, यहाँ पे सवालों का भरपाई है भाई साहब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ चिल्ड एकदम से, है ना। किधर गए तुम? ओके, तो यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं, ये ज़्यादा करके एनसीईआरटी के जो सवाल हैं एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, ठीक है। नीट के सवाल हैं, ठीक है, एकदम टेंशन लीजिएगा नहीं, लाइफ में टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्पलर हॉट्स क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, ये सारे सवाल हम आपसे करेंगे, है ना, और आप जवाब देंगे, है कि नहीं। और क्या है भाई साहब, और क्या है, और क्या है, तो थोड़ा कुर्सियों की पेटियाँ बांध कर बैठिए भाई साहब, ठीक है, ऐसे हिले डुले महात्मा फुले रहेंगे तो कब तक चलेगा भाई। दीज आर क्वेश्चंस विच आर देयर, अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं। और क्या है भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो 2017, 18, 19 ये सारे क्वेश्चंस भी है, 2022, 23, 24 के क्वेश्चंस भी हैं, अरे 2024 के क्वेश्चंस भी हैं भाई साहब, ठीक है। सो दीज आर क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू आस्क यू, सो प्लीज पे अ लिटिल मोर अटेंशन हियर। Okay, main points of this theory: the energy is emitted from any source continuously in the form of radiations, and this is called radiant energy. The radiations consist of electric and magnetic fields oscillating. हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भाई साहब, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, समझ में आ रही है, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे होता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। एक भाई साहब ऐसे रेंगते हुए सांप जा रहा है और एक भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओके, The radiations possess wave character and travel with the velocity of light. तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहाँ इशारा कर रहे हो कथकली, कहाँ इशारा कर रहे हैं तुमको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भाई साहब क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। These waves do not require any material. Okay, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किसी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, बाहर से गाड़ियाँ जा रही है, आपको सुनाई दे रहा है। अगर आपके और उस साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स के बीच में वैक्यूम हो जाए तो नहीं सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, मीडियम रहवे या ना रहवे आप तक पहुंच जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे, आपका ये अर्थ है, अर्थ के थोड़ा बहुत ऊपर तक एटमॉस्फेयर है और ये सन है, मतलब यहाँ तक ब्लैंक स्पेस है, पूरा वैक्यूम है, ठीक है। लेकिन क्या सूरज की रोशनी आप तक पहुँच रही है? तो ये रोशनी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। And electromagnetic waves do not need a medium for their propagation. उनके भाई साहब कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, they will go ahead, ठीक है।
ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव, वेव का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भाई साहब? वेवलेंथ हो गया लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। लैम्डा मतलब क्या होता है? देखो यहां से गया ट्रर, ये जो एक वेवलेंथ हो गया इसको अपन क्या बोलेंगे? लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। तो एक सेकंड में कितने वेव्स जा रहे हैं? टन 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 टन, एक सेकंड में भाई साहब इतने वेव्स गए। तो ये जितने भी वेव्स हैं इनको अगर आप गिनोगे एक सेकंड के वेव्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है भाई साहब? ए बोला ना, बोला लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं पे लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी को हम अपन ऐसे भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड होता है या हर्ट्ज लिख सकते हैं। लैम्डा का यूनिट क्या? लैम्डा का यूनिट क्या? मीटर, मीटर, मीटर। लैम्डा का यूनिट भाई साहब आपका है मीटर, ठीक है। तो कभी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो यूनिट से भी आप डिराइव कर सकते हैं इसको। तो c की वैल्यू जित इज वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। वेव नंबर क्या होता है भाई साहब? वेव नंबर का रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ लेना देना है। व्हाट इज वेव नंबर? वेव इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट साइकिल, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट साइकिल में। वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन 1 सेकंड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये समझ लो कोई वेव है, ठीक है, ये जो जा रहा है भाई साहब आपका हो गया एम्पलीट्यूड। दिस इज द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? Black body is an ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies. तो ऐसा एक बॉडी होता है जो emit भी करता है और absorb भी करता है radiations of all frequencies, और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? black body radiation. At a given temperature, the intensity and frequency of the emitted radiation depends on its temperature. At a given temperature, the intensity increases with decrease of wavelength. ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब wavelength को decrease करवाया, ये अगर आपने increase किया तो temperature increase होगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कोई भी मेटल सरफेस पे, ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब आपका एक तो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है। इस मेटल सरफेस पे अलग अलग मेटल सरफेस की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इस पे अगर आपने भाई साहब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। एवरी मेटल हैज इट्स ओन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ यू आर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल which has frequency, this light has frequency greater than the threshold frequency, you will see that electrons are emitted on the surface. तो यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इस सरफेस से, ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपने भाई साहब ऐसा किया कि फ्रीक्वेंसी इसके एकदम बराबर है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट होंगे और यहाँ पे ही रहेंगे। अगर आपने ये वाली सिचुएशन डाली कि इससे ज्यादा है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर तक दिखाई देंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड टिल आउटसाइड। इसी को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी एक इफेक्ट की वजह से हमको लाइट का दोहरा चरित्र लेना पड़ता है, विच इज ड्यूअल नेचर, ठीक है। अब अदरवाइज हम सिर्फ वेव नेचर लेकर चल रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ वेव नेचर होता तो भाई जैसे आप स्नूकर खेलते हो तो जब उस स्टिक से एक बॉल को मारते हो वो दूसरे बॉल को हिट करता है ना। कैरम खेल रहे हो, स्ट्राइकर से भाई साहब आप एक दूसरे को हिट करते हो। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा होगा कि मतलब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे जिसके वजह से ये इसको स्ट्राइक कर रहे हैं और ये रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है और ये वाले पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसका मतलब लाइट का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इट हैज गॉट बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। ओके ओके ओके। ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओनली फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल्स के लिए भाई साहब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चा पार्टी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। क्लियर है? ठीक है, ओके। Can cause photoelectric effect. The value of V naught is different in different metals. The kinetic energy of electrons which are emitted is directly proportional to the frequency of the striking photons and is quite independent of their intensity.
तो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब तो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्राइट लाइट अगर हमने किसी मेटल के ऊपर रखा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी से आप लाइट को उस पर इंसिडेंट कराओगे उस पर डिपेंडेंट है। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस h इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो इसको समझो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, भाई साहब थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है कि फिर से कराने का हमारे पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो आप मतलब अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा प्लीज आस्क, अदरवाइज देयर इज नो हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर एकदम थरो रिवीजन के लिए। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दिस विल बी व्हाट, ई दैट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्चुअली में क्या है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई दैट इज एच इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर विच इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज हाउ मच, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एच को कॉमन ले लो भाई साहब, माइनस। ठीक है, क्लियर है, अरबी क्लियर, क्या हुआ है, क्या हुआ क्या हो गया, पेन चाके ले रहा। ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, क्लियर है पीपलम, ओके ओके। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स। तो देखो लाइट की जो इंटेंसिटी है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, एनर्जी, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी किसको इंपैक्ट कर सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, इसको कर सकती है। ठीक है, तो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट का जो इंटेंसिटी है, ये आई आपका भाई साहब क्या है, इंटेंसिटी कैन नॉट इन्फ्लुएंस द काइनेटिक एनर्जी, हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कैन बेसिकली इम्पैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दैट आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो हमारे आइंस्टाइन भाई साहब आते हैं और इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, तुम लोग सबका हो गया, डन। चलो भाई साहब जमा करो। Einstein in 1905 was able to give an explanation of the different points of the photoelectric effect using Planck's quantum theory. Photoelectrons are ejected only when the incident light has a certain minimum frequency. तो जब आपका certain minimum frequency होता है तभी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। If the frequency of the incident light is more than the threshold frequency, अगर फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, the excess is imparted to the electron, तो आपका भाई साहब जो एक्सेस काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, दैट इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ऑल्टर्ड। ठीक है, तो ये इसी पे देखिए आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अगर बोला जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डबल कर दिया तो क्या चेंज दिखेगा आपको, आप बोलोगे क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड भी आपके डबल हो गए। ठीक है, अगर आपने भाई साहब एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, लेकिन इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड आपका बढ़ेगा। हो गया, तक हो गया, सबका हो गया भाई साहब, स्टेपल करके। क्या कर रहे हैं, हो गया, क्या कर रहा है, हो गया, हाँ
धन्य हो। उसमें ऐसे मारना, ले ले ये ले। अकबर देख तो सही, इसमें है ही नहीं तो तू उसमें। ये कौन अड़ियल ने चलाया था इसको भाई साहब, इसको पूरा अंदर लेके। हुआ नहीं। Okay, so according to this theory, energy cannot be absorbed or released continuously, but it is emitted or released in the form of small packets which are known as quanta. In case of light, this quanta is known as photon. This photon travels with the speed of light. Energy of the photon, तो energy of the photon भाई साहब कितना हो जाएगा, h into its frequency, और इस h को अपन क्या बोलते हैं, Planck's constant. Planck's constant की वैल्यू हो गई भाई साहब 6.62 into 10⁻⁻34 joules second. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, बोर्स मॉडल इन 1913, Niels Bohr in 1913 proposed a new model of atom on the basis of Planck's quantum theory. The main points of this model are: atom is of spherical shape having the size of order 10⁻⁻10 meter. ठीक है, whole mass is concentrated in the center called nucleus, जिसका भाई साहब इतना साइज है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रेवोल्यूशन होता है न्यूक्लियस के आजू बाजू, ये स्टेशनरी और फिक्स्ड ऑर्बिट्स में होता है. दीज आर बेसिकली फिक्स्ड एंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ठीक है, एंड ही अज्यूम इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन. और जब ये इसने अपने फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं और रोटेट करे, तब ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, इसलिए इनका एनर्जी लॉस नहीं होता है. तो जब तक भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रेडिएट एंड लूज एनर्जी. ठीक है, ये एक बात हो गई भाई साहब. ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड हुज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जो अभी आप कर रहे थे, देखो mvr इज इक्वल टू nh/2π. तो कौन से रेडियस अलाउड हैं? ओनली ऑर्बिट्स विद दोज रेडियसेस आर परमिटेड वेरिन द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल. ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 या 3 होगी इंटू h/2π. ओनली दोज रेडियसेस विल बी परमिटेड. ठीक है, उन्हीं रेडियसेस में जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा तो उसका एनर्जी रेडिएट नहीं होगा, या इट इज नॉट गोइंग टू लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, चलिए. ओके ओके ओके, एक मिनट, इनका एक सवाल था, उसको पहले पुल अप